Good afternoon, everyone. Jai Masi sabko. Praise the Lord. When I saw all of you, most of you wearing black, I was a little worried because usually when you wear black, it's like either you're mourning. So I know that none of you are mourning, but I was thinking, yeah. So I was thinking whether आप लोग सब विरोध कर रहे हैं. जब विरोध करेंगे ना पूरा काला पहनते हैं. So then they told me, no, it's a photo shoot and you'll have to wear black, white or green. Okay. Okay, so you're ready to study about the holiness of God? और हम तैयार हैं परमेश्वर के पवित्रता के बारे में सीखने के लिए. Yes, okay, and welcome to our online students. Thank you all for joining us. और ऑनलाइन स्टूडेंट का भी हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं जुड़ने के लिए. So we're going to begin studying chapter 4, about the holy God. और हम चौथा जो अध्याय पवित्र परमेश्वर के बारे में हम सीखते हैं. We said that God has different natures, different facets of God's nature. परमेश्वर का अलग-अलग हम स्वभाव को हम देखने पाते हैं. There are different natures of God or facets of natures of God. परमेश्वर के अलग-अलग स्वभाव उसके स्वभाव को हम देखने पाते हैं. And we know that it's important for us to get a revelation of the nature of God. हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर के उस स्वभाव का प्रकाशन हमें होना आवश्यक है. Why is it important to get? हमें क्यों जरूरी है उस प्रकाशन का? What does when you get a revelation of God, what does it lead to? और जब परमेश्वर का वो प्रकाशन हमें मिलता है, किस बातों के लिए हमें अगुवाई करता है? What does it lead to? किस बातों के लिए अगुवाई करता है वो? Men. बताइए भाई लोग. It leads to a response, okay? और हमें अगुवाई करता है उसका प्रति उत्तर देने के लिए, उसके प्रतिरूप करने के लिए. And then the response invites us to reproduce God's nature in and through us. और वो इस बात को बताता है कि परमेश्वर के उस स्वभाव को हमें अपने अंदर उत्पन्न करने के लिए उसकी अगुवाई करता है. And then his nature is revealed through us. और परमेश्वर का वो स्वभाव हमारे द्वारा वो प्रकट करवाता है. That means his nature is he invites us to be like him. और वो इसलिए हमें आमंत्रित करता है कि हम उसके समान हो सके. And we looked at Isaiah chapter 6 verses 1 to 8. और यशायाह की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 1 से 8 हम देखते हैं. And we see that Isaiah has a vision of what aspect of God? और यशायाह का क्या दर्शन है उस परमेश्वर के उस कार्य के प्रति? What vision can this group tell me what vision that Isaiah has of God? और यशायाह परमेश्वर के प्रति कौन सा उस दर्शन को देख रहा है? आप बताएं. Glory of God? What aspect of the vision that he sees? वो कौन से उस दर्शन को वो प्राप्त कर रहा है? उसका पहलू क्या दर्शन का? Yes, that group. Can you tell me all the men sitting there? और जो इतने भाई लोग वहां बैठे बताइए उसमें से. What aspect of the vision does Isaiah see? यशायाह को जो दर्शन देखा उसका पहलू क्या है परमेश्वर के लिए? Sorry? He sees God's holiness. He has a vision of God's holiness, right? और वो परमेश्वर के पवित्रता के बारे में देखता है. And when Isaiah sees God's holiness, what is his response? Can this group tell me? और ये ग्रुप बताए जब वो यशायाह परमेश्वर का उस पवित्रता को देखता है तो उसका देखता है तो what is his response? उसका क्या प्रत्युत्तर होता है? Yes, he says, "Woe to me, I am an unclean person." Yes. और वो अपने आप इस प्रत्युत्तर देता है कि मैं अशुद्ध व्यक्ति हूं करके बोलता है मैं. So when we face a holy God, it reveals to us that we are unclean. जब परमेश्वर के उस पवित्रता को हम देखते हैं और अपने आप में महसूस करते हैं कि हम अशुद्ध हैं, हमारे अंदर कोई पाप है करके. But we see that God shares his heart with Isaiah in spite of him being unclean, in spite of him living with people who are sinful. और परमेश्वर का वो हृदय को देख सकते हैं कि वो यशायाह के उस बात को महसूस कर रहा है और कि परमेश्वर
उन लोगों के बीच में जो अशुद्ध है, जो पाप में जीवन व्यतीत करे, उनके वो परमेश्वर का हृदय वहां पर हम देखने पाते हैं। No, no. Uh, so we see that हम देखते हैं God is holy, परमेश्वर पवित्र है, and the Isaiah cries out that he is sinful, और यशायाह पुकार रहा है कि मैं एक पापी हूं करके, and he says that he lives with people who are sinful. और वो कहता है कि मैं उन लोगों के साथ रहता हूं जो पापी हैं। But in spite of Isaiah being sinful and the people being sinful, और यशायाह देखते हैं वो स्वयं वो अशुद्ध है, और जब वो लोग के जीवन को भी अशुद्ध के जीवन में अशुद्धता को देखता है, but we still see that God reveals his heart to them. और वो देखते हैं कि उसके बावजूद भी परमेश्वर अपने हृदय को वो लोगों के बीच में प्रकट करता है। So what is here in this vision that Isaiah sees? What is Isaiah? What is God? What aspect of his heart is God sharing with Isaiah? और परमेश्वर का यशायाह के साथ वो जो अपने हृदय को किस पहलू से वो प्रकट करता है उसके जीवन में, किस विषय के बारे में वो अपना हृदय को प्रकट करता है? What part of his heart he's sharing with Isaiah? यशायाह के साथ किन विषयों को उसके साथ प्रकट करता है या बता रहा है, साझा कर रहा है? What does he ask Isaiah? वो यशायाह से क्या किन बातों को Look चाह at रहा है? Isaiah chapter 6 in your notes. यशायाह की पुस्तक 6 अध्याय को हम देखेंगे जो हमारे नोट्स में है। Yes, God says, who shall I send? Right? So he has a mission and he wants to send somebody to fulfill that mission. उसका कार्य क्षेत्र है ताकि किसी को भेजे उस कार्य को पूरा करने के लिए। So we see that, God is sharing his heart of engaging his people to partner with him in mission. और परमेश्वर अपने उस कार्य के लिए उन बातों को साझा कर रहा है ताकि उसके साथ सहभागी होकर उसके कार्य में शामिल हो सके। But even though we are unfit, लेकिन हम अविश्वास होने के बावजूद भी to stand in the presence of God, जब परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होते हैं, but God through Jesus Christ has made us fit. और परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमें उस स्थान में बनाया उसके साथ खड़े होने के लिए, To hear his voice उसकी आवाजों को सुने and to partner with him in mission. और उसके कार्य क्षेत्र में हम सहयोगी बन सके। So can you see how how loving God is, and how to he's come to such an extent where he's willing to make us partners. We people who are sinful, he's willing to make us partners with him in the work of हम his पापी होने kingdom. के बावजूद भी परमेश्वर हमारे साथ उसके हृदय को साझा करता है और हमें सहभागी बनाता है। So that's where we stopped looking at Isaiah chapter 6 verses 1 to 8. और हमने यशायाह की पुस्तक 6 अध्याय 1 से 8 में हमने देखकर इस बात को वहां पर विराम दिया था। So we'll continue with chapter और 4, right? अभी चौथे अध्याय को हम लगातार करने पाएंगे। So let's just pause for a word of prayer and then we'll continue. और हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम उसको आगे बढ़ेंगे। Father, we thank you for this day. प्रभु, हम आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। We thank you, God, that even though we are so sinful, प्रभु जी, हम पापी होने के बावजूद भी you still make a way for us to draw near to you, प्रभु आप हमें उस योग्य बनाते हैं कि आपके हम करीब आ सके। and you cleanse us and you sanctify us, प्रभु जी, आप हमें पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं, and you share your heart with us, और आपके हृदय को हमारे साथ साझा करते हैं। and you get us to partner with you in mission. और प्रभु जी, आप हमें सहभागी बनाते हैं आपके साथ उस कार्य क्षेत्र में बढ़ने के लिए। We thank you for all your works in our lives. प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं हर एक कामों के लिए जो आप हमारे जीवन में करते हैं। We thank you for the opportunity to learn all of this from your word. प्रभु जी, और हमें ये सौभाग्य प्रदान करते हैं कि आपके वचन के द्वारा हम सीख सके।
We pray that you will remove the tiredness and dullness and weariness in our bodies and our minds. प्रभु जी हमारे मन से हमारे शरीर से वो कमजोरी तत्व और थकावन को हम दूर करते हैं। And we pray, God, that you would help us to understand and look at your word and receive the truths. प्रभु जी और हमें समझ दे ताकि उसके सत्य वचन को हम समझ सके अपने जीवनों के अंदर। And that we will be able to receive it in our lives. और प्रभु जी हम योग्य बनाइए ताकि हम उन चीजों को प्राप्त कर सके आपकी ओर से। And hold it in our lives. प्रभु जी आप हमारे उस जीवनों को बनाइए, उस योग्य बनाइए प्रभु जी। So that we can partner with you in your mission and do what you've called us to do. प्रभु जी आप जो हमारे जीवन से चाहते हैं एक सहभागी के रूप में और जो चाहते हैं उस काम को करने के लिए। We thank you for hearing our prayer. प्रभु धन्यवाद आपने हमारी प्रार्थना को सुना। In Jesus' name, यीशु के नाम से amen. आमीन। So we saw that when God gives us or reveals his nature to us, जब परमेश्वर अपने पवित्रता को हमारे जीवन में जो प्रकाशन को देता है or when God reveals his nature to us, और जब उसका स्वभाव को हमारे जीवन में प्रदान करता है, he wants us to hold on to that revelation, and he wants that revelation that he gives to us, we need to respond to it. और वो जब प्रकाशन हमें देता है ताकि हम उसका प्रति उत्तर दे सके या प्रति उत्तर कर सके, We respond to his nature, उसके स्वभाव को हम प्रति उत्तर दे सके and God invites us to reproduce his nature in and through us. और हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर चाहता है कि उसके स्वभाव को उत्पन्न करके हमारे द्वारा प्रकट करे, So that we can, reveal who Jesus is through our lives. और हम उस बात को प्रकट कर सके यीशु मसीह हमारे जीवन के द्वारा वो क्या है, Or we can reveal God's nature in and through our lives. और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के उस स्वभाव को हम दिखा सके। So we see that God wants this aspect of his nature. परमेश्वर अपने उस स्वभाव का पहलू को हमारे जीवन से चाहता है, He wants his holiness to be reproduced in us. हमारे जीवन के द्वारा उस पवित्र स्वभाव को उत्पन्न कर सके। So let's look at 1 Peter chapter 1 verses 13 to 16. इसलिए हम देखेंगे पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 13 से 16 पद को। So everyone, it's there in your notes. Quickly just read 1 Peter chapter 1 verses और 13 to हम अपने 16. नोट्स में से पढ़े पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 13 से 16 पद, उसको देखिए। So what about holiness is Peter writing here? और यहाँ पर पवित्रता के बारे में पत्रस क्या लिख रहा है, What is he saying? वो क्या कह रहा है? Yes, just as God is holy, he wants us to also be holy. Okay? जैसा बताया गया कि वो हमारा परमेश्वर पवित्र है, उस प्रकार पवित्र बनने के लिए He wants us to be holy in what area? और वो कौन से क्षेत्र में चाहता है कि हम पवित्र बने? Sorry? Mind? मन में, In all our conduct, yes. और हमारा हर एक कार्य के क्षेत्र में, In all of our conduct, our behavior, our attitudes, he wants us to be holy. और वो हमारे हर एक जो जीवन के क्षेत्र है उन क्षेत्र में वो पवित्रता को चाहता है। Why does God want us to be holy? परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम पवित्र बने? Because he is holy, yes. क्योंकि परमेश्वर स्वयं पवित्र है। So God wants his nature to be reproduced in us. परमेश्वर चाहता है उसके स्वभाव को हमारे अंदर उत्पन्न करे। He says, be holy because I am holy. और वो कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। Isn't that amazing about how God thinks about us? और एक बड़ा अद्भुत बात है कि परमेश्वर किस प्रकार सोचता है हमारे लिए। He doesn't think of us small. He wants us to be like him. और वो एक छोटी सी बात है लेकिन उसके समान बनने के लिए
So sometimes, when we have in our lives, in the relationships that we have with people around us. जब हमारे चारों लोग होते हैं, जब जिनके साथ हम रिश्ता को कायम करते हैं, रिश्ता बनाते हैं. So suppose you are the boss, or you're the manager, or you're the head of something. और मान लीजिए आप किसी उस जगह में, आप वहां पर उनके बड़े अधिकारी हो सकते हैं, वहां पर मुखिया के रूप में हो सकते हैं. Or you're leading a prayer group, or you're leading a worship group, or some youth group, whatever. अब हो सकता है आप वहां पर आराधना की अगुवाई करने के लिए अगुवे होंगे, या प्रार्थना समूह को चलाने के लिए अगुवे होंगे, कुछ भी हो सकते हैं. So if somebody in your group, grows to become like you, smart, the way you do things, they're smarter than you, they become more efficient and skilled, what is your attitude? और आपका जो स्वभाव होता है उसके अनुसार क्या करता है, वो अपने आप को बनाने का प्रयास करता है कि आपका स्वभाव हो, चाहे आपका कार्य करने का तरीका हो, उससे बेहतर अपने आप को बनाने का प्रयास करता है. No. So if you are handling a group, you're a leader of a group. मान लीजिए आप एक समूह के अगुवे हैं, and one member of your team, आपके जो समूह के जो एक सदस्य है, they become like you, smart like you, intelligent, the way you do things, they also do things, but they do better than you. और वो व्यक्ति क्या करता है, आपसे अच्छा बनने के लिए, आपसे अच्छा करने के लिए वो प्रयास करता है. The person wants to become like you. और वो आपके समान बनने का, उस व्यक्ति के समान बनने का प्रयास करता है. And they become more skilled and more efficient than you. और हो सकता है उसके अंदर जो कौशलता है वो आपसे अच्छा उसके पास होगा. And when they become better than you, what is your attitude? जब आपसे अच्छा उस व्यक्ति के अंदर वो व्यक्ति होगा, तो आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? And they do better than you, what is your attitude or your reaction to that person? उस व्यक्ति के प्रति आपका तौर तरीका क्या होगा या व्यवहार कैसा होगा? Jealous, anger, sorry, you get jealous. जलन होगा. Anger, okay. क्रोध होगा. Resentment, okay. What will you do to that person? उस व्यक्ति के साथ आपका क्या व्यवहार होगा, या आप कैसे प्रकार का व्यवहार करेंगे? You don't let them to grow. Yes, you won't give them opportunities to grow. आप क्या करेंगे, उस व्यक्ति को बढ़ने का मौका नहीं देंगे, अवसर नहीं प्रदान करेंगे. Somebody was saying something online. Biju, were you saying something? As a good leader, we should encourage him. Yeah, as a good leader should encourage him. But what is our attitude? Usually. हमारा व्यवहार क्या होता है उस व्यक्ति के प्रति? Or what do we think? हम क्या सोचते हैं? Oh, this fellow or this person is acting smarter than I. Let me put them down, keep them down. मेरे से ज्यादा बढ़कर काम कर रहा है, तो क्या करेंगे, उसको दबाने का प्रयास करेंगे. Or we think that they are acting smarter than us. और हम क्या करेंगे, उससे अधिक हम अच्छा बनने का प्रयास करेंगे. हम सोचते हैं कि हमसे वो बहुत smart. What do you say for smart? अच्छा. अच्छा बनने का कोशिश कर रहा है. So we put them down, right? वो हमसे जब अच्छा बनने का प्रयास करता है, हम उसको नीचे गिराने के लिए हम कोशिश करते हैं. But look at God's attitude. लेकिन परमेश्वर का व्यवहार को देखे, स्वभाव को देखे. What is God saying? I want you to be like. वो परमेश्वर क्या बोलता है कि मेरे समान. I want you to be like me. Whatever is in me, my nature, I want it to be reproduced in you. जिस प्रकार मेरे स्वभाव है, तुम्हारे अंदर वो स्वभाव उत्पन्न होना चाहिए. So he's saying, be holy as I am holy. जिस प्रकार मैं पवित्र हूँ, वैसा तुम भी पवित्र बनो. So who he is should become part of who we are. और जैसे कि हम कौन है जो हम अपने जीवन को बना सकते हैं, और हम किस प्रकार उसके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं. So who he is, वो कौन है, should become who we are. और तो जब हम उसमें कौन है, नहीं, वो कौन है और हम कौन है. वो कौन है, वो जो चीज है वो हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए. हमको भी वैसे ही होना चाहिए. It should be reproduced in us. और हमारे अंदर भी उसका स्वभाव उत्पन्न होना चाहिए. We see this in the Old Testament. हम जब पुरानी नियम में देखते हैं, For example, Leviticus chapter 19 verse 2. और जो व्यवस्था की पुस्तक उसका 19 अध्याय. Leviticus 19, Pastor, I'm following this notes, please. Leviticus 19 verse 2. व्यवस्था उसका 19 अध्याय, उसका 2 पद. What does God tell Moses? और परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा?
Yes, he says, "You shall be holy, for I, the Lord your God, am holy." और कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। So that is what God set a standard in the Old Testament. और वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना वहां पर एक स्तर को वहां पर कायम रखा है Purana Niyam. पुराने नियम में। In the New Testament, we see the same standard is there. First Peter chapter 1, where God says, "Be holy as I am और holy." नए नियम के अंदर भी हम पहला पत्रस की पत्री में देखते हैं कि जिस प्रकार वहां पर भी बताया जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। So as we receive a revelation of the holiness of God, जब हम परमेश्वर के उस पवित्रता का प्रकाशन को जब प्राप्त करते हैं, everything that is in us that is not the nature of God will be very repulsive. We'll find it very repulsive. और क्या होता है कि वह हमारे अंदर जो परमेश्वर को जो प्रकाशन जब हम प्राप्त करते हैं, हमारे अंदर जो कुछ भी है उसकी पवित्रता के विपरीत वह उससे घृणित लगने लगता है। Yes, we will find it disgusting. और हमें घृणित लगने लगता है। We'll find it, that, oh, we don't want to do this. और हमारे अंदर इस बात को हम ये देखते हैं कि ये चीज हमें नहीं करना चाहिए। So even if you're not listening to any of what I'm teaching about holiness, और अगर जब मैं यहाँ पर पवित्रता के बारे में सिखा रही हूँ और उस बात को आप जब सुन नहीं पा रहे होंगे, अगर आप नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं, you can do this one thing which is very important. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको आपके जीवन में करना है। Say, God, give me a revelation of your holiness. परमेश्वर मुझे आपके पवित्रता का प्रकाशन मुझे दीजिए। Be hungry and desire for revelation of his holiness. उसके पवित्रता के लिए हमारे अंदर भूख और इच्छा होना है। Because when you have a revelation of God's holiness, it will change your entire attitude, your lifestyle, the way you live and your approach to life. जब परमेश्वर के उस स्वभाव को, उस पवित्रता को हमारे जीवन में हम जब प्राप्त करेंगे तो हमारा पूरा जीवन उस बदल जाएगा, हम बदलते हुए देखने And we पाएंगे। will find ourselves being drawn to his holiness. और हम देखने पाते हैं कि हम उसके पवित्रता में हम जुड़ जाते या उसके साथ हो जाते हैं। And then that holiness will be reproduced in us. और जब उसकी पवित्रता हमारे अंदर जब उत्पन्न होती है, It will be reproduced in us. और हमारे अंदर वो उत्पन्न होती है, And it will be revealed through us. और वो हमारे द्वारा प्रकट की जाती है। Are you able to understand? आपको समझ में आ रहा है? Yes or no? Yes. So it's very important to ask God to give you a vision or an an encounter of his holiness. और ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि हमें परमेश्वर के साथ उस मुठभेड़ को, उसका आमना सामना करने के लिए, ताकि हम अपने जीवन के अंदर उसकी पवित्रता को बना सके, स्वभाव को दिखा सके। So you remember Paul, Saul on the way to was later on called Paul on the way to Damascus. हम देखते हैं कि जब साउल दमिश्क के रास्ते में था, जो बाद में पौलुस कहलाया, He had an encounter with God. He saw God, the vision of God. और हम देखते हैं कि वहां पर उसने परमेश्वर का दर्शन को देखा, उसका दर्शन उसने प्राप्त किया। Did it change Paul's life? क्या उसका जीवन में परिवर्तन आया? Yes, it changed him so entirely. और वो पूरे तरह से बदल गया। And do we see that he lived such a great exemplary life? और वो ऐसा अपना जीवन को जीकर उसने दिखाया। Yes or no? हाँ, he just served God so faithfully to the very end. और उसने के अंत तक उसने विश्वास योग्यता के साथ उसकी सेवकाई को उसने किया। And we never see that he falls down or he gives into any kind of temptation or he goes away from God's will. और हम देखने पाते हैं वो कभी भी परमेश्वर से दूर हटते हुए या परीक्षाओं में गिरते हुए। Even look at Moses' life. लेकिन मूसा के जीवन को हम देखते हैं। Moses, when God encountered him at the burning bush, और जब वो मूसा झाड़ियों के बीच में उसका परमेश्वर के साथ जब दर्शन होता है, then what was his first reaction to God's to what God was telling him? जब परमेश्वर से बात कर रहा है तो मूसा का क्या प्रत्युत्तर रहा? पहले उन्हें क्या बोला परमेश्वर से? When God said, "I want you to go to Egypt," what was his first reaction? उसका पहला प्रत्युत्तर क्या था? परमेश्वर से जब परमेश्वर से बात किया। Huh? No, when the first time Moses encountered God at the burning bush, जब झाड़ियों के बीच में पहली बार मूसा ने परमेश्वर का जब दर्शन देखा, and God told him, "I want you to go to Egypt." और परमेश्वर ने से कहा कि मूसा को मिस्र देश में जाने के लिए,
What is his first reaction? उसका पहला प्रत्युत्तर क्या था? Okay. If the king comes to know they'll kill me, was his first reaction, okay, I'll go, God? Was it there was obedience? क्या उसने पहला उसका प्रत्युत्तर था आज्ञाकारिता का? No, yes, he was very afraid. He said, I won't go. Then he said, what is your name? They asked me, what is your name? What should I say? वो डर गया कि मैं क्या लोगों से क्या कहूंगा, तुम्हारा नाम क्या है, सब बातें पूछेंगे करके। Yes, and he was not willing to go to the very end, right? और वो वहां जाने के लिए वो योग्य, वो अपने आप को नहीं ठहराया। Even when God told him, I'll do all of these miracles, even then he said, I'm having stammering lips. I can't speak. और परमेश्वर जब कह रहा है कि मैं ऐसे चमत्कार के काम को करवाऊंगा, तो तब भी क्या कर रहा है? वो कहता है कि मैं बोलने में सक्षम नहीं, या बड़बड़ाना मेरे पास शब्द नहीं है। And then God gets a little upset with Moses. और परमेश्वर वहां पर उसके प्रति थोड़ा सा सोचने लगा। He says, okay, I will send Aaron with you. और उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके साथ हारून को भेजूंगा। But we see later on that Moses, he never gives up in leading people to the promised land. और हम देखते हैं वो कभी भी उसमें हारा नहीं इस्राएलियों की अगुवाई करने के लिए। We see that even when God tells Moses, I am not going to go with you. These people are very rebellious and stubborn people. You take them and go. Moses says, I will not go till your presence goes with us. और वहां पर देखते हैं कि जब परमेश्वर वहां पर उनकी बातों को देखकर परमेश्वर वहां पर क्रोधित हुआ और कहा कि नहीं, क्या करो तुम इन लोगों के लिए अगुवाई करो। उसके बाद भी नहीं, परमेश्वर आप मेरे साथ होना, मैं उस चीज की अगुवाई करने के लिए। He says, oh, if your presence goes with me, I will then take these people. आपकी उपस्थिति मेरे साथ होगी तो ही मैं इन लोगों को लेकर चल सकता हूँ। What could Moses have done that time? He said, God, you're saying these people are stubborn and rebellious. और वो मूसा क्या कहता है कि ये लोग तुम्हारे ये बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, ये तुम्हारे इनके अंदर कठोरता भी है जीवन के अंदर। And he's saying, if you are not willing to lead them, then who am I? I'm a man. Even I want a break. Give me a break. अगर आप नहीं करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे एक आराम दीजिए करके उसने कहा। I also want a break from these people. और मैं भी इन लोगों से मैं आराम करना चाहता हूँ। He would have said, God, I'm also so fed up. थक गया हूँ इस लोगों से, मुझे भी छुट्टी चाहिए इन लोगों से। और मूसा कह रहा है कि मैं परेशान हो गया, थक गया हूँ इन लोगों से। So, he could have done that, but what does he say? No, he stands up and he fights for his people. और वो कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया? अपने लोगों के लिए खड़ा हुआ लड़ने के लिए। The beginning we see Moses was not willing to lead the people. और शुरुआत में देखते हैं कि मूसा तैयार नहीं था अपने लोगों की अगुवाई करने के लिए। But when he sees the glory of God, when he sees the holiness of God, when he experiences the presence of God, it just changes Moses. जब उसके परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की पवित्रता को जब उसने उसके जीवन में अनुभव किया, उसके जीवन को हम बदलते हुए देखने पाते हैं। And we see till the end he leads his people, towards the promised और land. देखते हैं कि अंत तक वो अपने लोगों को प्रतिज्ञा के देश की ओर अगुवाई उसने किया। So are you able to see the importance of having an encounter or a vision with God? आप देखते हैं कि बड़ा उस महत्वपूर्ण बात को जो परमेश्वर के साथ जब आमना सामना होता है, कितना महत्वपूर्ण बात होती है। So you can ask God, I want to encounter you. और परमेश्वर से कहें कि प्रभु मैं आपका आमना सामना करना चाहता I हूँ। want to have a vision of your holiness. मैं आपके उस पवित्रता का प्रकाशन को, मैं दर्शन को So that चाहता it हूँ, can change me. ताकि वो मुझे बदलाव को ला So सके। that I can be who you want me to be. और प्रभु आप क्या चाहते हो कि आपके जैसा मैं हो सकूं? Can we do that, all of us? क्या हम इस प्रकार कर At सकते हैं? least one thing that you can do for this subject, holiness, is that which can help you and your ministry. और आपकी सेवकाई में बहुत ही लाभप्रद होगा जो आप एक चीज को कर सकते हैं पवित्रता के बारे में। So when we're talking about holiness, what is holiness? और हम पवित्रता के बारे में बताते हैं कि पवित्रता वो है क्या। So what is holiness in this context? इस पहलू के अंदर पवित्रता क्या है? Sorry? Having no sin, okay? But we're talking about holiness in context of God. परमेश्वर In के that context, what do we, परमेश्वर के उस पहलू में पवित्रता क्या है? yes, what is holiness? In the context of framework of looking at it with God. जब हम परमेश्वर के बड़े आकार में देखते हैं कि उसके पहलू में पवित्रता क्या है? No, what is holiness in regard with God? और पवित्रता
परमेश्वर में क्या बताती है? It's an attribute. Yes, holiness is an attribute of God. परमेश्वर के उस प्रतिक्रिया को जो कार्य वो करता है वो स्वयं जो है, Holiness is the very nature of God. और पवित्रता परमेश्वर का स्वभाव है। And actually, if you see, holiness is the core aspect of his being. और वो देखते हैं कि उसका जो मुख्य पहलू में पाया जाता है। That means everything of God is connected with his holiness. और हम देखते हैं सारी बातें वो जो पवित्रता है परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है। So what is holiness? Look at your notes. हम आपके अपने नोट्स में हम देखें पवित्रता के बारे में। Which page is it? Holiness is absolute 19. sinlessness. हिंदी में 17 in English, Hindi 19। in 19, page number 19. Okay, so look at, there's a list of things. Please read that, everybody. Page number 19 for the Hindi students, page number 17 for the English students. हर एक जन उस बिंदु को देखे जो हिंदी में पेज नंबर 19 में दिया गया है। उस पवित्रता क्या है उसके बारे में। What is holiness? पवित्रता क्या है? Quickly, you can just read that. जल्दी से इसको पढ़े हम। Finished? हो गया। So here it tells us what holiness is. और यहाँ पर बताइए कि पवित्रता क्या है। So what do you know from this? When you look at this list and we're saying, okay, all this is holiness, okay, or this is what holiness is all about, what are we really saying? और यहाँ पर जब हमने पवित्रता के बिंदु को देखा, ये पवित्रता किस बात को बताती है, किस बात को दर्शा रही है यहाँ पर। So we're saying holiness is all of this. It's sinlessness, it's purity, it's truth, it's faithfulness, it's justice, love, goodness, it's sacredness, and it's perfection. यहाँ पर देखते हैं पवित्रता पापहीनता है, पूर्ण शुद्धता है, पूर्ण सत्य है, पूर्ण विश्वसनीयता है, पूर्ण न्याय है, पूर्ण प्रेम है, पूर्ण अच्छाई है, पूर्णता पवित्रता है और पूर्ण परिपूर्णता है। So what are we trying to say? If this is all holiness, then what are we trying to say holiness is? और हम इस बात से क्या बताना चाहते हैं पवित्रता के बारे में? Sorry? God like, okay. What is the core nature of God? Holiness, yes. Holiness is the core nature of God. और परमेश्वर का जो पवित्रता का जो स्वभाव है, और holiness is the main nature of God. और ये जो पवित्रता परमेश्वर का मुख्य स्वभाव को हम देखते हैं। And out of that holiness flows love, compassion, mercy, grace, forgiveness, goodness. और हम देखते हैं उसके बाहर हम देखते हैं उसका जो प्रेम शुद्ध और वो बहता हुआ पवित्रता में पूर्णता सत्यता ये सब बातें पाई जाती है। So we're seeing that holiness is basically the core aspect of God, और who he is. और परमेश्वर कौन है या उसका वो पहलू को वहां पर बताता है। That holiness is the core aspect of God. और परमेश्वर का वो मुख्य पहलू होने के कारण It is his core nature. उसका एक मुख्य जो स्वभाव है, And his love flows from holiness. और उसका जो प्रेम पवित्रता के द्वारा बहता है। His compassion, grace, forgiveness flows out of holiness. और हम देखते हैं उस पवित्रता के बाहर हम देखते हैं उसका प्रेम सत्य और विश्वसनीयता उसमें से बहता हुआ। His faithfulness, his goodness, his justice flows out of holiness. और हम देखते हैं न्याय और विश्वसनीयता और अच्छाइयाँ उस पवित्रता में से निकलते हुए हम देखने पाते हैं। So holiness is not one isolated trait of God. और पवित्रता कोई अलग गुण नहीं है। It is the main core aspect out of which everything flows out of God. और हम देखते हैं कि सारे जो परमेश्वर के स्वभाव में से उस
बहते हुए हम देखने पाते So हैं। his love flows out of his holiness. उसका प्रेम उसकी पवित्रता से निकलता है, His goodness flows out of his holiness. उसकी अच्छाइयाँ पवित्रता से निकलती हैं, His mercy flows out, does not compromise his holiness. उसकी दया पवित्रता से समझौता नहीं करती है। His justice and his truth also flows out of और हम holiness. देखते हैं इसका न्याय और सच्चाई उसके पवित्रता में से निकलती है। So you see why we are studying holiness. You might be asking this question, why can't we study about God's love or और God's grace or God's goodness? Why are we studying holiness as a topic? और हम क्यों, जब वो परमेश्वर अच्छा है, भला है और वो न्याय है, पूर्ण है, प्रेम करता है, लेकिन हम उसमें खास बात देखते हैं कि परमेश्वर पवित्र क्यों है, उसके बारे में हम क्यों यहाँ पर सीख रहे हैं। हम लोग क्यों परमेश्वर की प्रेम या उसका दूसरा स्वभाव जो है हम लोग अलग से क्यों नहीं पढ़ रहे? हम लोग क्यों उसका पवित्र होने के बारे में अलग से एक सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे? It's because everything of who God is flows out of his holiness. परमेश्वर का वो स्वभाव जो पवित्रता का, उससे क्या कहते हैं, सारी बातें निकलती है। So you're understanding why holiness is important, right? और अब इस बात को समझना है कि पवित्रता क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, And what is the holiness of God? और वो परमेश्वर का अंदर वो पवित्रता क्या है करके। And what is so when we in the Bible when we see God is holy, जब हम बाइबल पढ़ते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, we also see that there are some things in the Bible that God wants to be holy. और बाइबल के अंदर कुछ बात यह है कि वो परमेश्वर चाहता कि उस पवित्रता को प्रकट करे। So some of the created things also is, he says is holy. और जो सृष्टि में कुछ बनाई चीजों के बारे में कहता है कि वो पवित्र है। So God, we know that holiness is the nature of God. और ये जो पवित्रता परमेश्वर का स्वभाव है। But what about created things? लेकिन बनाई हुई चीज, जो सृष्टि की वस्तु क्या है? So we see in the Bible जब हम बाइबल में देखते हैं that God designated some days to be holy. और परमेश्वर वहां पर कुछ दिनों को भी क्या करता है, पवित्र करके जाना जाता है, दिन को मानते हैं। Yes or no? What are some of the days He's designated to be holy? और पवित्र माने जाने वाला दिन कौन सा है? Sabbath, okay. The Passover festival, the Day of Atonement. Okay, so all of these were considered to be designated as holy days. और जो हम देखते हैं कि जो पर्व के बारे में, जो सबत का दिन है, ये पवित्र दिन करके ठहराया गया है, उसे माना जाता है। God also designated some places to be holy. और परमेश्वर स्थान को भी क्या पवित्र करके माना हुआ है। Like for example, can you give me some example of places that are holy? और ऐसा उदाहरण बताइए जो स्थान को परमेश्वर ने पवित्र करके ठहराया। The tabernacle, yes. मिलाप वाला तंबू। What else? और कौन सी? Yes, he said leave your sandals because the holy ground. और Yes. वहां पर देखते हैं मूसा को जब दर्शन दिया झाड़ी में, तो कहा कि ये पवित्र स्थान है, अपने चप्पल को उतार रहे। Even in the tabernacle, we have the holy place and the holy of holies. और वहां पर मिलाप वाले तंबू में देखते हैं पवित्र स्थान भी है और महापवित्र स्थान भी है। And we see also there are certain objects in the tabernacle or in the temple that God says it should be holy. और वहां पर उस मिलाप वाले तंबू के अंदर, उस मंदिर के अंदर भी परमेश्वर ने ऐसे स्थान को नियुक्त किया है जो पवित्र है। Even all the utensils in the temple were holy. और जहां पर वो देखते हैं उस मंदिर के चारों ओर भी, अंदर भी हम देखते हैं कि जो पवित्र ठहराया गया स्थान को, The utensils, saman. उसके जो वस्तु जो सामग्री है, उसको भी पवित्र परमेश्वर ने ठहराया है। Even the incense that is burned for God is holy. और जब मंदिर में देखते हैं जो वस्तुएं को ठहराया, जहां पर अग्नि को जलाया जाता है, जहाँ धूप जलाया जाता है, उसको भी परमेश्वर ने वहां पर पवित्र बनाया उस स्थान को। No, उस चीजों को। yes, the oil also is holy. और जो तेल है वो भी पवित्र किया गया। So we see all of these things are considered as holy for God. और ये जो परमेश्वर की दृष्टि में ये उसे पवित्र ठहराया गया। Did God set us apart as holy? क्या परमेश्वर कहता है लोगों को अलग करना भी पवित्र है? Yes. Did परमेश्वर के God लिए? set us apart as be holy? परमेश्वर अपने लोगों को अलग करता है, क्या वो पवित्र है? Yes or no?
हाँ नहीं। Yes. So he has also set us apart to be holy. और परमेश्वर अपने जो लोगों को अलग करता है वो भी एक पवित्रता को दर्शाता है। But it's not two same things. God is holy and these things or people are holy is not considered to be the same. और हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो पवित्रता और जो चीजों को बताया गया वो एक जैसा नहीं होता है। It's when we say God is holy, we are talking about his very nature is holy. और वो परमेश्वर जब पवित्रता के बारे में बताता है वो बता रहा है तो उसका मतलब उसके स्वभाव के बारे में। When we're talking about created things, being holy, we're basically saying that, hey, they're being set apart, consecrated or sanctified to be holy. और जो वस्तुओं के बारे में बताया था जो अलग करने अलग वस्तुओं को जो अलग करके ठहराया जाता है उस पवित्रता के बारे में कि लोगों के लिए अलग करना या लोगों को अलग करना वो ठहराया गया है। So you're able to understand the difference? दोनों में आपको अंतर समझ में आ रहा है? I don't think so. You're able to understand? आपको समझ में आ रहा When we है? say God is holy, what are we saying? जब परमेश्वर पवित्र है तो हम क्या बताते हैं? उसका अर्थ क्या है? His nature is holy, yes. उसका स्वभाव पवित्र है। So when we're saying certain places and objects or we are holy, what does it mean? अगर मान लीजिए जो स्थान और जो दिन के बारे में बताते हैं उसका मतलब क्या है? और हम लोग पवित्र है तो उसका अर्थ क्या है? हाँ? What does it mean? When we उसका are मतलब क्या है? holy or certain places are holy or certain objects are holy, what does it mean? अगर हम पवित्र है या एक विशेष स्थान वस्तु पवित्र है उसका मतलब क्या है? Yes, that means it is set apart. इसका मतलब है उसको अलग किया है It is consecrated. और उसको क्या किया है अलग करके रखा गया चीज है। ध्यान रखने वाली बात है। What is consecrated, Pastor? ध्यान रखना। Yesterday कुछ pastor और कुछ बोल रहा है. Consecrated. We were talking about consecrated lifestyle yesterday. समर्पण। Samarpan. Yes. And we are sanctified. हमें क्या करना है? अपने आप को शुद्ध करना है। So holiness, the holiness that we have, जो हमारे अंदर जो पवित्रता है is given to us. वो हमें दिया गया है। Is put upon us. और उसने हमारे ऊपर डाला है। It is given to us by God. और वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। It is something that we have got from God because He gives it to us. क्योंकि उसने तैयार किया और परमेश्वर हमें देना चाहता है। Because God is holy by nature. क्योंकि उसके स्वभाव में परमेश्वर पवित्र है। And we are holy because we are set apart for Him. और हमें पवित्र इसलिए बनाया, पवित्र हम इसलिए है कि उसने हमें अलग किया है। And so holiness for us is something that is our willingness to be set apart for God who is holy. और हमें इसलिए अलग किया गया है कि क्योंकि परमेश्वर हमारा जो परमेश्वर पवित्र है और पवित्र होने के लिए हमें उसकी इच्छा के अनुसार अलग किया गया है। So we are being set apart to be holy for Him. तो हम उसके लिए अलग किए गए हैं। And it's our willingness that God, we are saying, God, we want to be consecrated, sanctified to you. और हमारी इच्छा यही है कि जैसा वो पवित्र है कि हमें भी वो पवित्र कर सके और हम उस पवित्रता के लिए अलग हो सके। And we are saying, God, you are holy, I want to be completely yours. और इस प्रकार हम कहने पाते हैं कि आप पवित्र है कि मैं भी और हम भी पवित्र हो सके। So I set myself apart unto you. और हम इस प्रकार अपने आप में कहते हैं कि हम आप परमेश्वर आपके लिए अलग किए गए हैं। So that is what is holiness in your life and my life. और वो पवित्रता मेरे जीवन में और आपके जीवन में होती है। Another aspect of holiness that we need to think about, और दूसरा जो पहलू को हमें सोचना है पवित्रता के बारे में, that holiness is a heart thing. और पवित्रता एक हृदय में उत्पन्न होने वाली चीज है। Now when we think about holiness, जब हम पवित्रता के बारे में सोचते हैं or we say that person is holy, कि वो व्यक्ति पवित्र है, then what do we actually mean to say? और उसका मतलब क्या है? वहां पर क्या सोचते हैं उसके बारे में? When you say, Rita or Ashish or Abhishek is holy, और जैसे उदाहरण के लिए आशीष, अभिषेक, ये वो पवित्र है, उनका जीवन अच्छा है करके जब बताते हैं तो क्या सोचते हैं? so what is the meaning of it? उसका अर्थ क्या है? God is okay, but for us, what is our understanding? हम अपने The character is holy, yes. हम क्या समझते हैं इसके बारे में कि उसका चरित्र पवित्र है।
what aspect of their character is holy? और उसका कौन सा पहलू है? Actions, they don't drink, उसका जो कार्य कि वहाँ वो पीता नहीं है, they don't smoke, वो धूम्रपान नहीं करता, they don't chew pan, और वो पान नहीं चबाता, they don't spit, और वो थूकता नहीं है, they don't kick the cat. और वो बिल्ली को नहीं लात नहीं मारता. You know, when you get angry, you just, don't throw your anger at others. और जब हम किसी के ऊपर जब क्रोध को दिखाते हैं, That is just an external thing. और वो क्या होता है कि हमारे जो उस जीव हमारे उसके द्वारा प्रकट होता है. So when you look at somebody, you think, oh, they are holy because they don't do all of these जब हम things. किसी के बारे में सोचते हैं, व्यक्ति के बारे में कि वो बहुत पवित्र है, उसके साथ हमें जाना नहीं, चलना नहीं करके हम सोच ऐसे प्रकार का विचार आता है. नहीं. When we think people are holy, we think about all of these things which I said. जब हम किसी के बारे में सोचते हैं कि वो पवित्र है, तो ये बातें विचार हमारे अंदर आती है. But actually, holy is not an external thing; it's an internal thing. और ये जो हम ये बाहरी बात में, लेकिन वो आंतरिक बातों को दर्शाता है. So when holiness becomes part of our very nature, और जब हमारे स्वभाव में वो एक भाग हो जाता है, it will touch every area of our lives. और हमारे हर एक जीवन के क्षेत्र में वो छूता है. We willingly will set ourselves apart for God. और तब हम अपने इच्छा के अनुसार कहते हैं कि हमें परमेश्वर के लिए अलग किया गया हूँ. So are you able to see the chain of events that happens? और हम जंजीरों को देखते हैं जुड़ा हुआ, जो अलग अपने जीवन को अलग करते So हुए. when we see a vision of the holiness of God, जब हम परमेश्वर के उस पवित्रता का जब दर्शन को देखते हैं, then His holiness becomes part of us. और वो उसकी पवित्रता हमारे जीवन का भाग हो जाती है, It touches every area of our lives, और हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र को जब छूती है, and it will be reflected in and through our lives. God's और- holiness will be reflected through और our lives. हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की वो पवित्रता प्रकट होती है, दिखाई देती है. So that is why I'm saying it's so important for us to have a vision of the holiness of और God. इसलिए मैं उस बात को बता रही हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है परमेश्वर का उस पवित्रता का प्रकाशन को पाना, और प्रकाशन को हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करना. So tell your neighbor, hey, seek a vision of the holiness of God. और आप कहें कि आप कहें उनसे कि आप पवित्रता के लिए दर्शन के भागी हो. Why are you so dull today, and lethargic, all of you? आज क्यों आलसी महसूस कर रहे हैं? No power, no fan. I know it's very hot. Yeah. Yeah. So please pray that the current will come back. प्रार्थना करें कि बिजली वो आ जाए ताकि हमको हवा मिले. Yes. Others हम लोग एक दूसरा का हवा कर एक दूसरे को हवा करें. We are breathing each other's air and it's very hot. Yes, I understand. Sorry, आ गया? Okay, so it's important for us to get and have a vision of the holiness of God and they encounter the holiness of God. और हमें परमेश्वर के उस पवित्रता का और हमें दर्शन प्रकाशन को पाना है, और उसका हमें परमेश्वर के साथ सामना भी करना है. We look at another aspect of the holiness of God. और हम दूसरे पहलू को देखेंगे जो पवित्रता का है. Holiness is God's beauty. और जो पवित्रता है परमेश्वर की सुंदरता के बारे में बताता है. Some of you men are, all of you men are handsome. हो सकता है आप में से कोई, Not हो सकता है, सब लोग, सब लोग एक जैसे नहीं हो सकते कि वो अच्छा तगड़ा है हंस-पुष्ट करके. But all the men are handsome. लेकिन सभी जो पुरुष है या जवान लोग है बिल्कुल अपने अपने हष्ट-पुष्ट पाए जाते हैं. Handsome क्या बोलते हैं? हाँ? सुंदर. खूबसूरत, हष्ट-पुष्ट. Okay. That is Haspush is a healthy pastor. They are sundar. And all the ladies are beautiful. और सभी जो महिलाएं हैं बहुत ही सुंदर है. But did you know God is also beautiful? परमेश्वर भी आप समझते हैं कि परमेश्वर भी बहुत ही सुंदर है. अगर सोचा है आपने परमेश्वर भी सुंदर है? Oh, not bad. So we see in scripture that God is beautiful. Okay. We see the beauty of God. परमेश्वर की जो सुंदरता है,
So look at, we see various scripture passages where it talks about the beauty of God. हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन को परमेश्वर का वचन इस बात परमेश्वर की सुंदरता के बारे में बताती है. So what when we say God, the beauty of God, what aspect of God are we talking about? और आप कौन से इस पहलू के बारे में बात करते हैं जो परमेश्वर की सुंदरता के बारे में बता रहा है. Holiness is God's beauty. पवित्रता परमेश्वर की सुंदरता है. Why do we say that holiness is God's beauty? Because holiness is also another aspect of God, is His glory, and His glory is very attractive. और परमेश्वर की उस पवित्रता परमेश्वर की जो है सुंदरता के बारे में बता रहा है. दूसरा जो पहले देखते हैं कि परमेश्वर के उस महिमा को प्रभावशाली बनाते प्रभावित करते हुए. And we know God's glory is very attractive. Yes. और परमेश्वर की महिमा बहुत ही आकर्षण है. Remember what Moses saw, the burning bush. He saw the bush was burning, but it was not, it was not, turning into ashes. Thank you. हम देखते हैं कि जब मूसा को परमेश्वर ने जलती झाड़ी में दर्शन को दिया, वो झाड़ी जल तो रही है लेकिन वो बुझ नहीं रही है वहां पर. And he was attracted to it. और उसको देखकर वो आकर्षित हुआ. And even when Jesus walked on the earth, he manifested the glory of God. और जब यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था और उसने परमेश्वर की महिमा को अपने द्वारा प्रकट किया. And people were attracted to that glory. They came to Jesus. They wanted to be healed. They wanted to listen to him teach, and they also wanted to for him to cast out demons in their और lives. हम देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा जब यीशु के साथ ही लोग आकर्षित हुए, लोग छुटकारा पाए, दुष्टात्मा से जो पीड़ित थे उन्होंने चंगाई पाए, छुटकारा देखा. हम जीवन को बदलते हुए वहां पर देखा है. So God's holiness and glory is His beauty. और परमेश्वर की जो क्या बोलते हैं जो सुंदरता और महिमा उसकी पवित्रता को दर्शाता है. We'll continue after the break. I want all of you to go out and breathe some fresh air and come back. और सब लोग बाहर जाए, एक शुद्ध हवा लेकर वापस आए.